Okay, fine. So now let's start with the chapter metallurgy. In this one single shot, I'll be completing the whole chapter. Okay, we will be discussing about all the topics present in the chapter. Okay, I'm also including all the excluded topics. So here you observe that the whole chapter is divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 major parts. The first part, physical properties of metals, chemical properties of metals, physical properties of non-metals, chemical properties of non-metals, ionic compounds, which I have already discussed before in lower standards, metallurgy and corrosion. Okay, so these are various topics what we are going to discuss in this chapter. So the first point what we are going to discuss, physical property. This you have discussed in lower standards also, physical properties of metals as well as metals. So I am not discussing more over it. Just I have written some few properties. Physical properties of metals, they have luster, that is they have shine, and they have sonorous, that is they can produce sound. Okay. Again, remember there are exceptions in maximum of them, but still we are not discussing about exceptions. Okay. They are conductors of heat, electricity. They are malleable, that is they can be beaten into sheets. They are ductile, that is they can be drawn into wires. Okay, they are solid and they are hard. Except for solid, you can go for example of mercury, which is liquid state. Okay, again it is not hard. You can go for soft metals like sodium, potassium, lithium, which are falling in the category of soft metals, not hard metals. Okay, and when you see the physical properties of non-metals, maximum properties are opposite. They are non-lustrous except for bromine, or except not bromine, iodine. Iodine has shine. आयोडीन मेटल अगर आप देखोगे तो वो येलोइश कलर, गोल्डनिश कलर शाइन होता है. ओके, सो they also do not conduct heat and electricity, but again electricity there is exception. You can consider example of diamond. Okay, that is an exception there. Then so not diamond, graphite, and they are also hard. Graphite and diamond is a hard. Okay, then they are non-malleable, non-ductile, soft, and they exist in all the three physical states. Okay, so now हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में कि मेटल्स में कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज. इस चैप्टर में अब मैंने कोई एग्जांपल्स नहीं लिए हैं, मैंने जनरल रिएक्शन बताया हुआ ताकि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहे. कोई भी मेटल और कोई भी रिएक्टेंट है उससे वही रिएक्शन दिखाई देगा. ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे करता है? ऑक्सीजन के केस में मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो डेफिनेटली मेटल ऑक्साइड बनाता है. जनरली मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, बट कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड. वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, मतलब जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस की तरह बिहेव करते हैं, और जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं. ओके, तो वो बेसिक नहीं होते, वो एम्फोटेरिक होते हैं. ओके, सो बट जनरली बेसिक ऑक्साइड्स ही होते हैं मेटल के. फिर सेकंड क्या है, मेटल्स रिएक्शन विद वाटर. तो जनरली मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और अलॉन्ग विद दैट हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है. फर्स्ट रिएक्शन. उसके बाद डिपेंड करता है मेटल ऑक्साइड पे. इफ द मेटल ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर तो सेकंड रिएक्शन भी होगा. उस रिएक्शन में क्या होगा, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड. मतलब अगर उस मेटल का ऑक्साइड सोल्यूबल है वाटर में, ठीक है, तो क्या होगा, डायरेक्टली रिएक्शन कैसे दिखाएंगे हम लोग, मेटल प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. नेट रिएक्शन, क्योंकि मेटल ऑक्साइड मेटल से कट हो जाएगा. बट अगर उसका ऑक्साइड लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा जो सोल्यूबल नहीं है वाटर में, उनके केस में रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा. मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके, देख रहा हूं यहाँ पर मैंने रेड कलर में दिया MO, दैट इज मेटल ऑक्साइड इनसोल्यूबल, और दोनों रिएक्शन ग्रीन में दिया हुआ है दैट इज मेटल ऑक्साइड सोल्यूबल. ओके, देन वी कम टू मेटल प्लस एसिड. तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, मेटल जनरली व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मेटल सॉल्ट अलोंग विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये सारे एसिड्स के लिए ट्रू है और सारे मेटल्स के लिए ट्रू है एक्सेप्ट फॉर नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या होता है, रिएक्शन पहले नाइट्रिक एसिड सिमिलर ही करता है, हाइड्रोजन गैस बनता है. बट एज नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो खुद को रिड्यूस करता है पर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिस वजह से हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर बन जाता है. ठीक है, तो क्या हो गया, मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड, मेटल नाइट्रेट, वो तो बराबर है ना. मैंने क्या बताया, मेटल सॉल्ट बन रहा है,
तो जो भी एसिड रहेगा उसका ही सॉल्ट पार्ट आएगा, मतलब एनायनिक पार्ट आएगा। तो यहाँ पर मेटल नाइट्रेट बनेगा, अलॉन्ग विद दैट वाटर बनता है, बट उसके साथ ये जो वाटर बन गया ना उसकी वजह से ऑक्सीजन लूज हो जाता है। तो ऑक्सीजन लूज होने की वजह से जो नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट ग्रुप, उसमें से और भी ऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड बन सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। देन वी कम टू रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, ठीक है, जो जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। तो मेटल जब सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स में रिएक्ट करते हैं तो डिपेंड करता है जिसका सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, जिसका सॉल्ट सॉल्यूशन है वो मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है। अब मैंने यहाँ पर M लिया एज अ मेटल और ACl, A लिया एज अ अनदर मेटल। तो ये मेटल और मेटल सॉल्ट जो है जब ये इस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये एक्टिव स्टेट में ऑब्वियसली सॉल्यूशन है तो वाटर में डिसॉल्व है। सो अगर ये मेटल A वाला जो मेटल है अगर इसकी रिएक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ M मेटल, ओनली देन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। अभी रिएक्टिविटी कम है ज्यादा, उसके लिए क्या, यू कैन रेफर द reactivity series given in a textbook. It's page number 97. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है यहाँ पर, यू कैन सी। तो रिएक्टिविटी सीरीज में इतना ध्यान में रखो, जो मेटल ऊपर रहता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, जो नीचे होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। इसका मतलब क्या है, हाईली रिएक्टिव कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव। इसका मतलब इफ यू सी हियर, लेट्स कंसीडर सोडियम एंड कैल्शियम, सोडियम ऊपर आता है कैल्शियम नीचे आता है। तो यहाँ पर मैं अगर सोडियम यूज करूँ और यहाँ पर अगर मैं कैल्शियम यूज करूँ तो क्या होगा, सोडियम कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा। बट अगर यहाँ पर सोडियम और यहाँ पर कैल्शियम है तो कैल्शियम की उतनी रिएक्टिविटी नहीं है कि वो सोडियम को निकाल पाए, इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होना चाहिए। ओके, देन वी कम टू ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये जो मैंने बनाया ना इधर, दैट इज रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी दिखा रहा हूं मैं, इस ग्रेटर देन लेस देन रिएक्टिविटी ग्रेटर देन, सो M शुड हैव ग्रेटर रिएक्टिविटी देन A। लास्ट क्या दिया, मेटल रिएक्शन विद नॉन मेटल। जनरली मेटल जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं सो इट फॉर्म्स सॉल्ट। जैसे सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा क्लोरीन गैस के साथ, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। यहाँ पर मैंने मेटल प्लस नॉन मेटल की सॉल्ट ऐसे लिखा हुआ है। एक्सेप्शंस है अभी हर केस में, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसमें एग्जांपल्स दिए, जरा देख लो एग्जांपल, तो लिख कर प्रैक्टिस करो। सेम मैकेनिज्म से ही होने वाला है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, देन वी कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एज वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑलरेडी, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में आप देखोगे कि वेरी फ्यू प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स का रिएक्टिविटी डिफरेंट पैटर्न का होता है, बहुत बार वो इतना ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करते। सो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो दे फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। सी, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन की नॉन, जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर मेंट टू बी एसिडिक इन नेचर जनरली, बट न्यूट्रल भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं कुछ। जैसे कि यहाँ पर आपके टेबल में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड जो एसिडिक है, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है और सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक है। ओके, सो डिफरेंस है, बेसिक बहुत रेयरली मिलेंगे, बट जनरली एसिडिक और न्यूट्रल दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। देन वी कम टू नॉन मेटल प्लस वाटर। तो जनरली वाटर के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स व्हिच रिएक्ट विद वाटर। ओके, उसमें से वन ऑफ देम इज हैलोजन। हैलोजन मैंने बताया था आपको, या नहीं पता तो याद रखो, जो अपना पीरियोडिक टेबल होता है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जो 7A ग्रुप होता है या 17 ग्रुप रहता है, दैट बिलोंग्स टू हैलोजन्स। उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे कंपाउंड जो है वो उसी कैटेगरी में, या ये सारे जो एटम्स है उसी में बिलोंग करते हैं। सो हैलोजन जनरली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वो भी दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसिड। अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ वेरी वीक एसिड बनाते हैं, दूसरा एसिड भी बनाते हैं। एक्स की जगह पे आप क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, नॉन मेटल्स के साथ वापस से नॉन मेटल जब ये एसिड का रिएक्टिविटी में देख रहे हैं नॉन मेटल्स में भी हैलोजन ही आएगा उधर भी रिएक्शन के लिए, और कोई रिएक्ट नहीं करता नॉन मेटल्स की कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से देखो हैलोजन ही लिखा मैंने, इसलिए एक्स इंडिकेट जनरली हम हैलोजन के लिए ही करते हैं। तो एक्स प्लस 2HBr, ये 2HX प्लस Br, क्या हो गया, ये एक्स अंदर घुस गया, ये Br बाहर निकल गया। डू यू अंडरस्टैंड? तो HBr क्या है, एसिड है। सो ये जो एनायनिक पार्ट था ब्रोमीन, वो निकल गया, उस जगह पे दूसरा हाइड्रोजन बैठ गया और ये ब्रोमीन रिड्यूस हो गया। यू अंडरस्टैंड? बहुत बहुत जनरल रिएक्शन, जितने रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए उतने ही प्रिपेयर करके जाओ, उसके अलावा नहीं आने वाला कुछ। गो फॉर ओनली दोस रिएक्शंस, ठीक है। देन नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्टिविटी थी, बट वेरी प्रिसाइज कंडीशन, स्पेशल कंडीशन देने पड़ते हैं,
ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ नॉन मेटल्स बनता है, जैसे कि आपके टेक्स्ट में दिया है सल्फर प्लस H2 गिव्स H2S, हाइड्रोजन सल्फर। सो पर्टिकुलर रिएक्शंस होते हैं, बट इतना ध्यान में रखो कि जब हम लोग नॉन मेटल्स को रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो नॉन मेटल जो है वो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं उनके पास, इसलिए उस केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। समझ में? दिस वी एंड विथ नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, देन वी कम टू आयनिक कंपाउंड। तो ये आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? आयनिक बॉन्ड से बनते हैं। आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने सीखा है, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द आयंस। और आयंस कैसे बनते हैं? बाय गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया या 2-4 इलेक्ट्रॉन दे दिए जो मुझे नहीं चाहिए, उस जगह पे किसी और एटम में वो इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए थे, उसने ले लिए। तो क्या हुआ, मैंने इलेक्ट्रॉन दे दी। इनिशियली मेरे पास क्या था, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स था, तो मेरा एटम स्टेबल था। मैंने क्या कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिए, तो क्या होगा मेरे ऊपर, मेरे पास प्रोटॉन उतना ही है। प्रोटॉन दिए क्या मैंने? नहीं दिए। मेरे पास पॉजिटिव चार्ज उतना ही था, बट नेगेटिव कम हो गया, जिस वजह से मेरे ऊपर चार्ज क्या हो गया, मेरे ऊपर चार्ज क्या हो गया, मेरे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए बट प्रोटॉन नहीं दिए, तो मेरे पास चार्ज क्या हो गया, पक्का। ये नेगेटिव के लिए मैंने चिल्लाया, इसलिए पॉजिटिव बोल दिया, बराबर ना। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन से, फॉर एग्जांपल 10 नहीं 12 ले लेते, 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन है मेरे पास, तो मैंने 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, बट प्रोटॉन कितने हैं, 12। तो 12 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव है, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा किसका है, पॉजिटिव का। कितने ज्यादा है पॉजिटिव, 2 ज्यादा है, तो +2 हो जाएगा मुझ पर चार्ज। और जिसने वो 2 इलेक्ट्रॉन लिए, उसके पास भी इनिशियली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम थे, बट उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए, तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। वो कितना माइनस होगा, 2। ठीक है, तो वो आयंस बन गया ना, मैं आयन बन गया, मैं कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज आयन बना। आयन क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच इज चार्ज्ड। मेरे पास चार्ज आ गया कितना, +2, उसके बाद चार्ज कितना आ गया, -2, तो वो आयन बना, मैं आयन बना। दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा ना, 2 आयंस के बीच में बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड। आ रहा है समझ में? ओके, सो दैट इज व्हाट इज, इसमें मैंने लिखा है, देखो मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मेटल प्लस नॉन मेटल माइनस, इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड। ये आप 8 या 7 से सीखते आ रहे हैं, NaCl का हर साल एग्जांपल दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस क्या किया, वी डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो जनरली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द मेटलर्जी पार्ट, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अभी मेटल्स जो हम लोग देखते हैं हमारे आसपास में, जो मेटल्स प्रेजेंट है, या मैं ये स्टैंड देख रहा हूँ, ये प्लास्टिक और आयरन का बना हुआ है, मैं स्क्रूज देखूंगा तो आयरन का है, स्टील का बना हुआ है, मैं बेंच देखूंगा तो बेंच के रॉड्स जो है वो किससे बने हुए हैं, आयरन से बने हुए हैं। तो ये आयन प्योर फॉर्म में आया कैसे? ऐसे नहीं रहता है कि डायरेक्टली खोद लिया तो आयन का स्टोन मिल गया, आयन का पीस मिल गया, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, these metals are generally very few metals ऐसे होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में नहीं होते हैं, जो डायरेक्टली मिलते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, वो डायरेक्टली मिलता है एक्चुअली, क्योंकि उसका रिएक्टिविटी बहुत कम रहता है। देखो जितना ज्यादा रिएक्टिविटी रहेगा ना, उतना कॉम्बिनेशन ज्यादा रहेगा उसका। अब मुझे एक बात बताओ, आपके एज ग्रुप के हिसाब से बोलो, जो पर्सन ज्यादा अनस्टेबल है मेंटली, वो क्या करता है, ज्यादा दोस्त ढूंढता है, एक के साथ फ्रेंडशिप ब्रेक हो गई तो दूसरे को ढूंढता है, दूसरे किसी को पकड़ता है, बराबर। बट जो पर्सन खुद स्टेबल रह सकता है अपने लाइफ में, वो फ्रेंड्स ढूंढेगा ही नहीं, और ज्यादा ग्रोथ उसका होगा, क्योंकि उसको पता है उसको लाइफ में क्या करना है, उसको फ्रेंड से डाइवर्ट नहीं होगा। बिकॉज हम चीजें इन्वाइट करेंगे तो और चीजें हमको करनी पड़ेगी ना उनके साथ। फ्रेंडशिप ऐसे थोड़ी है, टेक होता है, गिव भी तो करना पड़ता है। माय पॉइंट इज कि वैसे ही होता है, अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो वो बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा किसी न किसी। अगर मैंने सोडियम को अलग भी कर दिया ना, तो एयर के कांटेक्ट में आके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड बना देगा, कुछ ना कुछ करेगा। बट वही मैंने गोल्ड को रखा ना, गोल्ड उसको फोर्स करोगे तो भी रिएक्ट नहीं करेगा। आई यू अंडरस्टैंड? तो ये जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना एक सब्सटेंस, उतना ही ज्यादा उसके कंपाउंड बनते हैं। जैसे सोडियम है, बहुत रिएक्टिव है, तो सोडियम कभी भी आपको इंडिपेंडेंट फॉर्म में मिलेगा नहीं, हमेशा सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट अलग अलग फॉर्म के सॉल्ट्स में मिलने वाले हैं, और उसमें से आपको उसको इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बट वही अगर आप गोल्ड की बात करो, प्लैटिनम की बात करो, तो वो आपको लिटरली ऐसे ही मिलता है, उसको बस वॉश करके थोड़ा मेल्ट करके उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट सारे मेटल्स का वैसे किस्सा नहीं होता। ऑल मेटल्स अकर इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स, और इन मे बी इन माइंस और अंडरग्राउंड अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मेटल्स हैं।
पहले अर्थ जो थे पूरा बॉल ऑफ फायर था, क्योंकि सन से ही निकला हुआ था, तो उसमें सारे मेटल्स मेल्टेड फॉर्म में थे, धीरे धीरे कूल होते गए। अभी हमारा सिर्फ कोर हॉट है, ठीक है, अर्थ का सिर्फ कोर हॉट है, तो बाकी का सारा कूल हो रहा है। बाकी का सब कूल हो गया, अगर ठंडा हो गया तो वो मेटल्स उधर अंदर गड़ गए ना, जैसे कूल हो गए, तो वो मेटल्स हम निकालते हैं हमारे यूज के लिए। बट जब मेटल्स निकालते हैं तो वो कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, उसमें कुछ ना कुछ जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के फॉर्म में नहीं मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम बॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड से तो मेरा भी काम क्या है, एल्यूमिनियम को सेपरेट करो ऑक्सीजन से, बराबर, तो मेरे को मेरा प्योर मेटल मिल जाएगा। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन से अगर मैंने सेपरेट कर भी दिया समझो, बट वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है सॉइल में, तो उसके साथ और भी तो कचरा निकलेगा, तो वो कचरे को भी निकालना पड़ेगा ना। तो वो जो एक्स्ट्रा कचरा है उसके साथ, उसको बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग, GNG। तो गैंग प्लस योर मेटल सॉल्ट फॉर्म्स ओर, एंड मेटल्स अकर इन फॉर्म ऑफ ओर्स। आ रहा है समझ में, मेटल्स अकर इन फॉर्म ऑफ ओर्स। सो ओर मतलब क्या है, मेटल सॉल्ट प्लस वेस्ट और प्लस गैंग। तो हम लोग क्या करते हैं इनिशियल प्रोसेस में मेटलर्जी में, अगर मेरे को मेटल चाहिए तो पहले मुझे कचरा निकालना पड़ेगा, तो कचरे को निकालने का जो प्रोसेस है उसको ही बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्यों, क्योंकि मैं जब कचरा निकाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मुझे प्योर फॉर्म ऑफ ओर मिल रहा है ना, तो वही प्रोसेस को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं। सी रिमूवल ऑफ गैंग, उसको गंगुए मत बोलना, ये गैंग है, ठीक है, so when you take out gang from the ores it forms concentrated ore, इस प्रोसेस को concentration of ore बोलते हैं। ये पहला स्टेप, ओके, ये टाइप्स दिए हैं हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं। फिर concentrated ore जब बना तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, अभी एनायनिक पार्ट निकालेंगे। मेटल क्या है, मेटल इज पॉजिटिवली चार्ज हमेशा, तो वो कौन सा पार्ट होगा, कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज क्या होता है, एनायन। तो अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज पार्ट को मेटल में है, मेरे को उसको एक्सट्रैक्ट करना, तो उसमें से नेगेटिवली चार्ज पार्ट को मुझे निकाल के फेंकना होगा, वही है एनायनिक पार्ट। तो मैं अभी कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिलने के बाद एक सॉल्ट सिर्फ मिला ना, तो सॉल्ट में से मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एनायनिक पार्ट निकाल दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ कैटायनिक पार्ट। उसको मैं रिड्यूस करूंगा, उसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। अभी 2 इलेक्ट्रॉन समझो निकले थे कैल्शियम में से, उसको वापस 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देना मतलब इसको रिड्यूस कर, फिर उसको रिड्यूस करके मैं उसको मेटल प्योर एक मेटल बना दूंगा, तो वो प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और उसके बाद क्या करूँगा, एक्सट्रैक्टेड मेटल में भी कुछ इंप्योरिटीज रहती है, वो इंप्योरिटीज को निकाल देना, मतलब ही रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइंड मेटल बनेगा, ठीक है। ऐसे प्रोसेस है, हम एक एक पार्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ ओर इनिशियली। ओर के कंसंट्रेशन में कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहले जो सेपरेशन हम लोग करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का, सॉरी मेटल्स और वही गैंग जो प्रेजेंट है उसके पार्ट का जब सेपरेशन करते हैं, तो सबसे पहला मेथड जो है दैट इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। या ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पे हम लोग उसको सेपरेट करें मास के बेसिस पे। उसमें 2 मेथड्स दिए, विल्फ्लाई टेबल मेथड दिया हुआ है और हाइड्रोलिक सेपरेशन दिया हुआ है। दोनों मेथड्स आपको डायग्राम दिया हुआ है टेक्निक में। पहला मेथड क्या है, विल्फ्लाई टेबल। विल्फ्लाई ने टेबल एक बनाया था स्पेसिफिक जो वाइब्रेट करता था, उसमें छोटे पोर्स है। दोनों मेथड्स में ना ओर को ना ग्राउंडेड फॉर्म यूज करते हैं। ग्राउंडेड मतलब कूट कर, पाउडर फॉर्म। तो दोनों फॉर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, ओर का पाउडर बनाते हैं और फिर आगे यूज करते हैं। अभी ओर जनरली एज बीइंग अ मेटल कंपाउंड वो हैवी होगा, वो नीचे डिप्रेस हो जाएगा, नीचे की तरफ वो सेटल हो जाएगा, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं गैंग की बात करूं तो गैंग में मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, एंड जनरली वो लाइटर होता है। इसलिए बहुत सारे सब्सटेंसेस को या बहुत सारे ओर्स को उसका पाउडर बना के हम लोग ग्रेविटेशन के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। तो विल्फ्लाई टेबल मेथड में क्या, एक टेबल है, उसके ऊपर एक मेटल का फ्रेम होता है, उसके ऊपर एक क्या बोलते हैं शीट लगाया जाता है जिसमें होल्स रहते हैं बहुत सारे, और उसमें से नॉचेस भी होते हैं। आपके टेबल में दिया हुआ है टेबल, ओके। सो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पाउडर को एक साइड से डालते हैं और उसको हम लोग पानी जो है उस पर हम लोग डालते हैं और वाइब्रेटर पर रखते हैं। किस पर रखते हैं, वाइब्रेशन पर रखते हैं। तो वाइब्रेट होने की वजह से क्या होता है, हेवी पार्टिकल जो होते हैं वो जाकर नीचे सेटल हो जाते हैं, छोटे छोटे होल्स में से वो निकलते हैं। हेवी पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं ऊपर की तरफ। अभी वाइब्रेशन हो रहा है तो ऊपर की तरफ जो पार्टिकल रह जाता है वो क्या है, वो गैंग होता है, और वो टिल्टेड टेबल होता है तो स्लाइड करके निकल जाता है उसमें से, ठीक है। तो जो ऊपर का वाटर है जिसमें भी गैंग पार्टिकल से वो स्लाइड करके निकल जाएगा, वही वो वाइब्रेट करके नीचे की तरफ पार्टिकल जाएंगे वो उधर ही रह जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ मेथड है, ये सबसे पहला वाला मेथड दैट इज विल्फ्लाई टेबल मेथड। आप एक बार रीड करोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा,
ठीक है, बट ये एक मेथड है। सेकेंड मेथड क्या है, हाइड्रोलिक सेपरेशन। हाइड्रोलिक सेपरेशन में क्या है, एक कंटेनर है, एक कंटेनर में ऊपर से बड़ा सा कंटेनर होता है, उसमें पाउडर डालते हैं और नीचे से वाटर का जो है एक क्या पंप लगाया जाता है, जिसमें से वाटर बहुत ज़्यादा स्पीड से गश किया जाता है। तो क्या होता है, वाटर ऐसे जा रहा है और वाटर ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये मिक्स हो रहा है इस तरह से। तो क्या होता है, ऊपर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं और के या जो हैवी पार्टिकल्स हैं नीचे से चले जाते हैं और जो गैंग है वो ऊपर ऊपर की चले जाते हैं। तो ऊपर का हम लोग सेपरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी देखो दोनों ग्रेविटेशन के बेसिस पे नीचे आ गए ना, गैंग पार्टिकल्स ऊपर रह गए और हैवी पार्टिकल्स ऊपर के नीचे आ गए ऑन बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन बोथ केसेस। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेथड जो आता है दैट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या होता है, दो रोलर्स लगाए हुए हैं। आपने गिरनी देखी, गिरनी चक्की का वाला मशीन देखा है कि उसमें वो लेदर बेल्ट होता है, पीछे छोटा सा, पीछे की तरफ जहाँ मशीन ऑन करते हैं, मतलब मेन स्विच रहता है ना, वहाँ पर एक छोटा सा गोला रहता है और आगे की तरफ एक बड़ा सा स्टोन रहता है मशीन के अंदर, और मशीन के बाहर एक रिम होता है और यहाँ पर छोटा वाला। तो क्या उसमें होता है, उसपे कन्वेयर एक बेल्ट होता है ना, उसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। उधर से ऑन किया तो वो मोटर घूमने लगता है, जिस वजह से मशीन घूमने लगती है। आ रहा है ना समझ में? तो वैसी अभी इमेजिन करो वैसी रोलर्स आपके सामने रखे हैं, पर दोनों सेम साइज के। एक को मैग्नेटिक रखा है, एक मैग्नेटिक नहीं है, एक मैग्नेटिक है, और ये बेल्ट ऐसा मूव करता है। तो जब मैं पाउडर डोर इसके ऊपर डालूंगा तो वो बेल्ट के ऊपर से मूव करेगा। अगर अब ये सेपरेशन मेथड कब यूज कर सकते हो आप, जब दोनों में से गैंग या और में से दोनों में से किसी एक को क्या चाहिए, हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चाहिए। समझो हमारे केस में हम बोलते हैं कि और को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और गैंग को नहीं है। तो जब ये मूव कर रहा है ऐसे कन्वेयर पे, ये मैग्नेटिक रोलर है, तो जब पाउडर डोर ऐसे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये चिपक जाएगा, हाँ यहाँ पर स्टक हो जाएगा क्या, और गैंग जो गिर जाएगा बाहर, क्योंकि उल्टा आ रहा है ना, नीचे से घूमेगा नीचे से। तो नीचे से जब तक मैग्नेटिक रोलर है ना, तब तक क्या होगा, वो चिपका हुआ रहेगा। जैसे मैग्नेटिक रोलर क्रॉस कर जाएगा तो वैसे गिर जाएगा नीचे। तो ओर का पार्टिकल इधर आ जाएगा और जो नॉन ओर पार्टिकल गैंग है जो नॉन मैग्नेटिक है उधर गिर जाएगा। तो देखो सेपरेशन हो गया, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड क्या है, फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन में जनरली हम ऐसे ओर्स यूज करते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, मतलब जो ऑयल में डिजॉल्व हो सकते हैं वाटर। ठीक है, तो आपने कभी नोटिस किया है, आप कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, ऑयल लेना और वाटर लेना, उसको फेंटना, तो आप देखोगे फोम बनता है। वो मिक्स नहीं होंगे कभी भी, बट ऊपर फोम बनेगा और नीचे जो है वाटर रहता है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, फेंटना मतलब क्या होता है, एजिटेट करना, स्टर करना, मिक्स करना। तो ऊपर की तरफ फोम पार्टिकल्स आ जाएंगे, वो ऑयल के होंगे, और नीचे की तरफ जो है वाटर रहता है। इसमें वही करते हैं। इसमें जनरली जिंक सल्फाइड ओर्स हम लोग यूज करते हैं। इसमें सल्फाइड ओर जो है वो हाइड्रोफिलिक नहीं हाइड्रोफोबिक होते हैं, सॉरी हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, पाउडर डोर बनाते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, बड़ा मतलब एक्चुअली बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, पूरे हमारे बिल्डिंग जितने कंटेनर्स होंगे, ओके, मतलब ये 10-12 फीट का कंटेनर होगा, उसमें वो लोग पाउडर डोर डालते हैं और पाइन ऑयल भी डालते हैं, और उसके साथ साथ पाइन ऑयल है पाइन का, और वाटर, और उसको एजिटेट करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली मिक्स करते रहते हैं। तो क्या होता है, ऊपर फोम बन जाता है, नीचे वाटर रह जाता है। तो वाटर सोल्यूबल जो इम्प्योरिटीज रहते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, और फोम जो होता है ना उसमें हमारा और डिजॉल्व होता है। ऊपर फोम रहेगा, उसमें और रहेगा, तो वो फोम को ऐसे निकालते हैं साइड से, वो और हो गया कॉन्सेंट्रेट। देखो सब मेथड में क्या कर रहे हैं, गैंग को और आपके और को सेपरेट कर रहे हैं, और मतलब जो आपका मेटल सॉल्ट है उसको सेपरेट कर रहे हैं ना, तो कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं। तो ये है फ्रॉथ फ्लोटेशन। वो फोम जो है उसको फ्रॉथ बोलते हैं। तो फ्रॉथ फ्लोट कर रहा है ना, तो इससे फ्रॉथ फ्लोटेशन। ओके, देन वी कम टू लीचिंग। लीचिंग में क्या है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट है, जिसमें मेरा पार्टिकल डिसॉल्व हो रहा है, मेरा और जो है स्पेसिफिकली और डिसॉल्व हो रहा है, बट गैंग डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम का और ऑक्साइड दैट गेट्स डिसॉल्व्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल देता हूँ, उसको मिक्स करता हूँ अच्छे से। ठीक है, मिक्स कर दिया उसको अच्छे से, उसके बाद थोड़ा 1-2-4 घंटा हाई टेम्परेचर पे छोड़ दो, तो क्या हो जाता है, मेरा और उसमें डिसॉल्व हो जाता है, बट गैंग पार्टिकल्स ऊपर फ्लोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, गैंग पार्टिकल्स फ्लोट या नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, तो वो मिक्स नहीं हुआ ना, तो उसमें मैं लिक्विड अलग कर दूंगा आगे। तो यही प्रोसेस जिसमें मेरा जो ओर का सब्सटेंस था, या जो मेरे पास पाउडर था ओर का अलग मिक्स विद गैंग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा जो ओर है वो डिसॉल्व हो गया, वो लीच हो गया अंदर,
और दूसरा सब्सटेंस जो है वो मिक्स नहीं हुआ, उसी को मैं लीचिंग बोलते हैं। तो बाद में उसको फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। तो उसको फिल्टर अभी वापस से डिजॉल्व हुआ तो फिल्टर को वापस से निकल जाएगा, अगर डिजॉल्व नहीं होता तो वो रह जाता होगा फिल्टर। तो वो लीचिंग, एक्चुअली लीचिंग मेथड से ये बॉक्साइट का होना भी सेपरेशन है आगे, बट हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। बेयर्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस दिया हुआ है आपको, वो उसके लिए शायद मैं अलग वीडियो बनाऊं या हम लोग अलग डिस्कस करेंगे, बट इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो लीचिंग मेथड से ही एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन डिस्कस किया गया है, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ओर को देखो अपने गैंग से सेपरेट कर दिया, ये हमारा काम होगा। अभी कॉन्सेंट्रेट करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए व्हाट डू वी डू, जो आपका ओर का भी मिला है मुझे वो देखना पड़ेगा कि मेटल क्या है, हाईली रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है। आपके रिएक्टिव सीरीज में ऑलरेडी मैंने देख के रखा है कौन से हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, कौन से मॉडरेट है, कौन से लो रिएक्टिव। तो अगर मैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करूं तो जनरली दे कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब क्या है, डायरेक्टली सॉल्ट लो, उसको वाटर में डालो या उसको मेल्ट करो और 2 इलेक्ट्रोड डाल दो, उसमें प्लस माइनस इलेक्ट्रिक करंट पास करो। इलेक्ट्रिक करंट पास करने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयॉन्स डिसोसिएट हो जाएंगे। वो तो मेल्ट करने से या इसमें वाटर में डालने से, लिक्विड में, सॉल्वेंट में डालने से खुद ही वो डिसोसिएट हो जाएंगे। तो डिसोसिएट मतलब सेपरेट होते, जैसे Al2O3 है तो Al+3O -2 3O-2 बन जाएगा, तो सेपरेशन हो जाता है। और जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड पे जाएंगे और नेगेटिवली चार्ज आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड पे जाएंगे, बराबर। तो वो इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल सेपरेट कर सकते हैं सारे, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, एल्यूमिनियम हो, सारे इसी मेथड से सेपरेट होते हैं। जिसमें हम लोग बहुत बार उस मेथड को इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम लोग उसकी वजह से, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसको, मेटल को, ताकि वो रिड्यूस हो जाए। मैंने बताया ना कैल्शियम, अगर कैल्शियम +2 है उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम बैलेंस हो जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, ठीक है। देन वी कम टू मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, जैसे कि इस केस में जिंक वगैरह आता है। तो इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग 2 स्टेप्स में करते हैं। सबसे पहले इनका ऑक्साइड्स बनाते हैं। अगर ऑक्साइड बना हुआ है तो ठीक, अगर ऑलरेडी मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में है तो ठीक, नहीं है तो उस सॉल्ट को पहले ऑक्साइड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। कैसे करने का ऑक्साइड में कन्वर्ट, हीट करो। अभी हीटिंग में भी तो 2 मेथड्स है, देयर आर 2 मेथड्स इन हीटिंग। फर्स्ट मेथड जो है हीटिंग में, दैट इज विद ऑक्सीजन और विद एयर, सेकंड इज विदाउट एयर और ऑक्सीजन। अगर विद एयर है ना तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। आप चपाती घर में बनाते हो, वो रोस्ट करते हो, तो एयर हम लिमिटेड करते हैं उसमें, नहीं ना, एयर तो रहता ही सप्लाई रहता है। बट दूसरा जो प्रोसेस है वो है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो जनरली उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं, तो कैल्सिनेशन करते हैं। तो डिपेंड करता है कि ओर जो है ना, ओर मेटल तो होगा ही उसमें, बट उसका एनायनिक पार्ट क्या है। जैसे कि जिंक सल्फाइड ओर अगर है ना, जिंक सल्फाइड मतलब ZnS है, तो ZnS में ऑक्सीजन है क्या, कहीं नहीं है, तो उसको हमको रोस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑक्साइड बनाना है उसका, ZnO बनाना है। बट अगर जिंक कार्बोनेट लो, ZnCO3, ऑक्सीजन है, तो उसको ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं, उसको ऐसे ही हीट करो विदाउट एयर, तो फिर भी वो जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। हमको ऑक्साइड ही चाहिए ना, ये बना दिया हमने ऑक्साइड, अभी तक मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, इस मेटल ऑक्साइड को ऐसे सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे, या सॉरी ऐसे मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे डायरेक्टली जो इससे ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब जैसे कि एल्यूमिनियम से रिएक्ट करती है, जिंक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और जिंक अलग हो जाएगा। मेरे इसमें मोटो क्या था, एल्यूमिनियम को सेपरेट करना मोटो नहीं था, मैंने कहा जिंक को सेपरेट करना। तो मैंने क्या किया, जिंक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनकर जिंक होगा मेरा मेटल एक्सट्रैक्ट। आया समझ में। एंड देन वी कम टू लो रिएक्टिविटी और लेस रिएक्टिव मेटल्स। इसमें जनरली हम लोग ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड बनाने के लिए भी प्रोसेसेस होते हैं, बर्निंग ही जनरली यूज करते हैं, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। बट उसके बाद बहुत बार ना सेकंड स्टेप जो मैंने बताया ना, रिएक्टेड विद हाईली रिएक्टिव मेटल, उस जगह पे हम लोग उसके ही कंपाउंड, उसके ही ओर के साथ रिएक्ट करते हैं और हमको मेटल मिलता है। जैसे कि अगर मैंने मर्क्यूरी सल्फाइड लिया है, मर्क्यूरी सल्फाइड, हाँ, या मर्क्यूरस सल्फाइड HgS लिया हुआ, Ag2S लिया हुआ, उसको मैंने हीट किया, मर्क्यूरी ऑक्साइड बन गया। मर्क्यूरी ऑक्साइड को मर्क्यूरी सल्फाइड के साथ ही रिएक्ट करूंगा वापस, और वो मर्क्यूरी सल्फाइड हो गया। आ रहा है समझ में, यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे हम लोग रिएक्शन करते हैं ताकि हमारे लिए वर्क जो है कम हो जाए, इजी हो जाए,
ठीक है, बट वो लो लेस रिएक्टिव में ही जनरली होता है, हाई रिएक्टिव में नहीं होता है, नहीं मॉडरेटली में होता है। तो फिर आता है चैप्टर के लास्ट पार्ट का, दैट इज कोरोजन। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोजन? कोरोजन इज ईटिंग अप ऑफ मेटल because of some physical factors or some chemical factors because of which the quality of the metal is compromised। जैसे कि ये मेटल के बेंचेस है, इसके फ्रेम मेटल के ना, इसके ऊपर आप देख रहे हो पेंट किया हुआ है। क्यों पेंट किया हुआ है? अच्छा दिखे उसके लिए तो पेंट करते ही हैं, बट उसके साथ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेंट करते हैं। उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो खराब होते जाएगा, क्योंकि व्हेन मेटल है ना, आयरन कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, क्या होता है? रस्ट हो जाता है। रस्ट क्या होता है? इट इज नथिंग बट ऑक्साइड ऑफ आयरन। रस्टिंग के लिए भी पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए, वाटर और ऑक्सीजन दोनों चाहिए, सिर्फ वाटर या सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं होता। उसके लिए आई थिंक थर्ड चैप्टर में एक एक्सपेरिमेंट, थर्ड चैप्टर में था अभी पूरे क्या है? 3 टेस्ट ट्यूब्स रखते हैं, एक में एयर और वाटर दोनों देते हैं, सेकंड में सिर्फ वाटर देते हैं, थर्ड में सिर्फ एयर देते हैं विदाउट वाटर। अभी आप बोलोगे सर एयर में कहाँ वाटर है? या वाटर वेपर तो है ना, वो तो रिएक्ट करता ही है, करेक्ट? तो इसीलिए कोरोजन जो है, और कोरोजन को कभी रस्टिंग मत बोल देना। रस्टिंग एक टाइप है, एक मेटल का कोरोजन। ऐसे आप बहुत सारे मेटल है जो कोरोड होते हैं, जैसे सिल्वर है, सिल्वर चेन मेरा देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा ब्लैक हो गया पहले से। ये ब्लैक क्यों हो गया? बिकॉज ये जो है एयर में पड़ा हुआ सल्फर से रिएक्ट कर रहा है, सल्फाइड बनता है, या ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्साइड बना है। मैं ये सिल्वर तक रिएक्ट करता है, इसलिए इसका कॉस्ट कम कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड रिएक्ट नहीं करता, इसलिए उसका कॉस्ट ज्यादा, क्योंकि वो उसके ऑर्नामेंट बनता है ना। इमेजिन करो सोडियम के ऑर्नामेंट बनते तो क्या होता है? गले पे फटता है, जब फटा के टूटते हैं, बिकॉज इवन इफ इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर बर्स्ट। ओके, सो बेसिकली कोरोजन हर मेटल का होता है अलग अलग फॉर्म्स में, डिपेंड करता है उसका। जैसे कॉपर को कोरोड करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है ग्रीनिश कलर का। नहीं क्या पीतांबर यूज करते हैं लोग, नहीं क्या निकालते हैं कॉपर के वेसल से, तो वही होता है। तो इस तरह से एक्चुअली रिएक्शन होता है, आगे का और भी रिएक्शन होता है उसमें, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स। बट स्टिल अभी मेटल्स को अगर हमको प्रोटेक्टेड रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उन मेटल्स को हमको प्रिवेंट करना पड़ेगा कोरोजन से। कोरोजन हो गया तो मेटल क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। अभी इतना मोटा आयन है, अगर उसको कोरोड हो गया तो क्या हो जाएगा? वो पतला हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा ऑक्साइड बन जाएगा उसको। तो मेरा मेटल वीक हो गया ना, फायदा क्या हुआ इतना सा मेहनत कर? इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उस मेटल को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। जो क्वालिटी का मेटल है उसके वही क्वालिटी मुझे मेंटेन रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं प्रिवेंट करूंगा कोरोजन को, कोरोजन होने से पहले ही। फिर उसके मेथड्स है, पेंटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग नहीं लिखा मैंने, पेंटिंग कर सकते हो मेटल के ऊपर, गैल्वेनाइजिंग। पेंटिंग तो मालूम है आपको, नॉर्मल पेंट करो, तो इसलिए ग्रिल्स वगैरह को हम लोग पेंट करते हैं ताकि वो सड़े नहीं, और जैसे निकलने लग जाता है वापस आप पेंट करते हैं तो वो रस्ट कलर हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? जिंक का लेयर ऊपर से बनाना। प्रोसेस में बोला दिया, एक बार रीड कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, प्रोसेस में डिटेल नहीं आएगा। गैल्वेनाइजिंग मतलब जिंक का एक ऊपर से लेयर बना दो उस मेटल के ऊपर, ताकि वो जिंक लेस रिएक्टिव होता है ना। ऑब्वियसली आप जो लेयर ऊपर लगाओगे ना मेटल का, उसका रिएक्टिविटी कम होना चाहिए कंपेयर टू द मेटल इनसाइड। उल्टा मत कर देना, नहीं तो मेटल और जल्दी सड़ेगा, ठीक है। सो गैल्वेनाइजिंग जिंक का लेयर, आपने देखा होगा आयरन नेल्स वगैरह होते हैं ना, जो नेल्स हम लोग यूज करते हैं वो स्टील के नहीं बनते, वो आयरन के होते हैं, उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, इसलिए उसका कलर जो है वो स्टील जैसा दिखता है। फिर टेनिंग, टेनिंग मतलब वापस टिन, इसमें टिन इन्वॉल्व है, टिन का भी रिएक्टिविटी कम है, इसलिए टिन का लेयर या टिन के साथ रिएक्शन करवा के दे ट्राई टू मेक इट प्रोटेक्टेड। ओके, देन एनोडाइजेशन। एनोडाइजेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। सी एनोडाइजेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड एनोड, तो एनोड पे ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ही एनोडाइजेशन। एनोड पे जनरली इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, इसलिए एनोडाइजेशन बोला जाता है। तो जनरली एल्यूमिनियम का एनोडाइजेशन होता है, एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम का ही होता है। तो एल्यूमिनियम जो है, अभी मैं अगर एल्यूमिनियम का रिएक्टिविटी जो है इनको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, आपके घर में कुकर्स देखे, ग्रे कलर के कुकर्स होता है, आजकल लोग ग्रे कलर के कुकर्स आ रहे, ब्लैक कलर के कुकर्स या वेसल्स आ रहे, यूटेंसिल्स आ रहे, तो वो सब क्या होते हैं? वो एनोडाइज्ड वेसल्स होते हैं। मतलब एल्यूमिनियम का वेसल लिया था, मोटा एल्यूमिनियम, मोटा लेयर ऑफ वेसल लिया था, उसको क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब उसके ऊपर फोर्सफुली ऑक्साइड का लेयर बना दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मेटल जब कोरोड होता है तो मैक्सिमम टाइम्स ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम अगर कोरोड होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। मैंने क्या किया? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑक्साइड का लेयर पहले ही बना दिया उसके ऊपर, क्योंकि मेटल सड़ेगा नहीं ना, ऑक्साइड के साथ तो वापस ऑक्सीजन रह करके कुछ नहीं बनाने वाला है। इसलिए ऊपर क्या होता है? ऐसे मेटल का एक लेयर होगा, अंदर मेटल होगा सेंटर में, दोनों साइड पे ऑक्साइड का लेयर होगा। मेटल इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड, इसलिए उसी प्रोसेस को एनोडाइजिंग होता है। एनोडाइजिंग और फैंसी पर्पसेस में भी यूज करते हैं, वो नेम प्लेट्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज करते हैं। जनरली रिमेंबर, एनोडाइजिंग जो है
वो भी एक तरह से प्रिवेंट करता है कोरोजन। देन कम्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब मैं क्या करूँगा, हमारा जो यूटेंसिल है या जो सब्सटेंस है जिसको मुझे प्लेट करना है, वो सब्सटेंस को मैं एट कैथोड रखूँगा इलेक्ट्रोलिसिस में। मेरे को पता है कैथोड में मेटल आके डिपॉजिट होता है, और जो मेटल को मुझे डिपॉजिट करना है उस चीज़ पे, उसको मैं सॉल्ट में रखूँगा, सॉल्ट सोल्यूशन में, और उसका एनोड भी बनाऊँगा। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगा तो एनोड में से भी आयन्स निकलेंगे, और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जो आपका लिक्विड है, उसमें से भी वो आयन्स निकलेंगे, और सारे के सारे आयन्स पॉजिटिवली चार्ज होंगे एज ए रिजल्ट ऑफ मेटल। तो वो कहाँ जाएंगे, कैथोड के पास, नेगेटिवली चार्ज के पास। और वो कैथोड में मैंने क्या रखा है, इलेक्ट्रोड थोड़ी रखा है, मैंने अपना वो सब्सटेंस रखा है जिसको मुझे प्लेट करना है, लेयर बनाना है। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी जैसे कि सिल्वर कोटेड स्पून रहते हैं, सिल्वर स्पून नहीं रहता, बट सिल्वर प्लेटेड स्पून रहते हैं, या गोल्ड प्लेटेड स्पून रहते हैं, तो वो प्लेटिंग किया जाता है उसको। बहुत सारे ऑर्नामेंट्स में प्लेटिंग किया जाता है। हाँ, एस्थेटिक वैल्यू भी है उसका, मतलब इसके पर्पसेस के लिए भी, क्या बोलते हैं, फैंसी पर्पसेस के लिए भी किया जाता है, बट देयर आर मोर रीजंस। एंड देन अलाइन। अलाइन का मतलब क्या, मल्टीपल मेटल, लो एंड हाई रिएक्टिव मेटल्स को मिक्स कर दो, मेल्ट करके कंबाइन कर दो, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्टिविटी चेंज हो जाएगी मेटल्स की। रिएक्टिविटी एज इन बिकॉज ऑफ फिजिकल कॉम्बिनेशन, मल्टीपल मेटल्स कम इन कॉन्टैक्ट। अभी जैसे स्टील है, स्टील कहाँ रिएक्ट करता है वाटर के साथ, हम स्टील के बर्तनों में खाना खाते हैं, बट वही बनता मैक्सिमम कंपोनेंट उसमें क्या, आयन है। आयन के बर्तन में हम खाना नहीं खा सकते, उसको वाटर लग गया तो सड़ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो अलाइंग इज वन ऑफ द गुड मेटल्स। ब्रास भी वन ऑफ द अलॉयज है। क्लियर? समझ में आ गया? ये तुम्हारा पूरा चैप्टर है, लेयर्स और हॉल्स प्रोसेस जो एक बार रीड करोगे तुम, मैंने एक चार्ट भी बना के उस पर भी एक वीडियो बना दिया, या आप लोगों को बैकअप भी रहेगा, और ये समझ में आ जाए कि आपको समझ में लग जाएगा। ये क्लियर हुआ पूरा आपका, ये कंप्लीट कर।